ورتل القرآن ترتيلا. آئیے اشاعت القرآت یوٹیوب چینل سے جڑیے اور گھر، آفس اور دکان میں بیٹھے بیٹھے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھیے. ناظرین کرام، آج لے کر کے حاضر ہوں الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں ان حروف کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، کون سا حرف کہاں سے ادا کرنا ہے، کہاں سے نکالنا ہے. چونکہ میرے بعض احباب نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ الف سے لے کر یا تک جو یہ تختی ہے، کون سا حروف کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، اس کو بھی بتلایا جائے تاکہ قرآن پاک کو پڑھنے میں آسانی ہو. تو آئیے پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے. آپ کے سامنے ہے یہ الف سے لے کر یا تک یہ تختی ہے، اور یہ پوری تختی میں نے خود نے تیار کی ہے. ایک ایک حرف کو میں کوشش کروں گا آپ کو بتلاؤں کہ کون سا حرف کہاں سے کیسے نکلتا ہے. تو پڑھیے سب سے پہلے الف. الف اس کو الیف نہیں پڑھیں گے، بہت سے پڑھتے ہیں الیف، یہ غلط ہے. جلدی سے پڑھیں گے الف، اور اس کے بعد با. با با کو دونوں ہونٹوں کا جو تری والا حصہ ہے وہاں سے ادا کریں گے. با با کہیے با، تری والے حصے سے با. بے نہیں پڑھیں گے، سیدھا پڑھیں گے بالکل. با تا تا تا. تا کو ہم ادا کریں گے زبان کی جو نوک ہے، زبان کی نوک کو ثناء علیا کی جڑ پر لگائیں گے. اوپر والے جو دو دانت ہیں سامنے کے ان کو ثناء علیا کہتے ہیں. یہ سامنے کے چوڑے سے 4 دانت جو ہوتے ہیں ان کو ثناء کہتے ہیں، اور اوپر کے 2 والوں کو ثناء علیا کہتے ہیں، نیچے والے 2 کو ثناء سفلی کہتے ہیں. تو تا کو ہم ادا کرتے وقت زبان کی نوک کو ثناء علیا کی جڑ پر لگائیں گے، ادا کریں گے. لگائیے زبان کی نوک کو ثناء علیا کی جڑ پر لگائیے. تا تا کہیے تا. اور آگے چلتے ہیں ثا. ثا زبان کی نوک کو ثناء علیا کے کنارے پر لگائیں گے، کنارے پر، اور نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. اس کے اندر ذرا بھی سختی نہیں ہوگی، ذرا بھی سیٹی کی آواز نہیں ہوگی، بالکل نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. ثا 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 ثا. ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں جیم. جیم. جیم کو کہاں سے ادا کریں گے؟ زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. جو زبان ہے زبان کے بیچ والے حصے کو بالکل اس کے اوپر لگائیں گے اور وہاں سے ادا کریں گے جیم. لگائیے زبان کے بیچ کو بالکل اس کے اوپر لگائیں. جیم جیم. صرف زبان کے بیچ کو اس کے اوپر لگائیں گے، باقی اور کوئی حصہ کہیں نہیں لگائیں گے، تو انشاءاللہ جیم ادا ہو جائے گا. جیم جیم. ہا. ہا کو کہاں سے ادا کریں گے؟ حلق کے بیچ سے. حلق کا بیچ والا جو حصہ ہے وہاں سے ہم ہا کو ادا کریں گے. ادا کیجئے ہا ہا ہا. حلق کے بیچ سے. خا. یہ خا بھی حلق سے ادا ہوگا، لیکن خا کو حلق کا جو منہ کی طرف والا حصہ ہے وہاں سے ادا کیا جائے گا. خا خا خا. دال. دال. جہاں سے آپ نے تا کو نکالا ہے یعنی زبان کی جڑ اور ثناء علیا یعنی اوپر کے 2 دانتوں کی، نہیں، زبان کی نوک اور ثناء علیا کی جڑ یعنی اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے اس کو ادا کیا جائے گا، جہاں سے تا کو ادا کیا ہے. دال دال دال. کہیے دال. اب آگے ہے رال. جہاں سے آپ نے ثا کو ادا کیا ہے وہیں سے رال کو بھی ادا کریں گے. زبان کی نوک اور ثناء علیا کا کنارہ، کنارے پر لگائیں گے.
इसके अंदर भी नरमी होगी, सख्ती नहीं होगी। नरमी के साथ अदा कीजिए। रैल रैल, इसको जाल नहीं पढ़ेंगे, जाल, ये गलत हो जाएगा। जाल भी नहीं पढ़ेंगे, जाल भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जबान की नोक को सना उलिया के किनारे पर जब हम लगाएंगे तो खुद ब खुद अदा हो जाएगा। रैल रैल, सिर्फ जबान की नोक को सना उलिया के किनारे पर लगाएंगे, बाकी कोई हिस्सा कहीं नहीं लगेगा। रैल रैल। रॉ रॉ, जबान का किनारा और कुछ जबान की पुश्त, यानी जबान का बेक वाला हिस्सा, जबान का किनारा और थोड़ा सा जबान का बेक वाला हिस्सा, जबान की पुश्त, इनको कहाँ मिलाएंगे? सना उलिया रबाई के मसूड़े से इनको टच करेंगे, वहां से मिला करके अदा करेंगे। मिलाइए। रॉ रॉ, जबान का किनारा और जबान की पुश्त सना उलिया रबाई के मसूड़ों पर लगाएं। सना के बराबर में रबाई है। दांतों का नक्शा मैं आगे आपको स्क्रीन पर दूंगा, वहां पर आप देख लीजिएगा। रा रा रा। अब आगे आ जाइए। ज़ ज़ ज़। ज़ा के अंदर सख्ती होगी, ज़ा के अंदर सख्ती होगी और सीटी की आवाज निकालेंगे। ज़ ज़ ज़। जबान की नोक सना सुफला का किनारा और कुछ इत्तिसाल सना उलिया से, यानी जबान की नोक को सना सुफला के किनारे पर लगाएंगे और थोड़ा सा सना उलिया से भी उसको टच करेंगे, फिर ज़्यादा करेंगे। ज़ 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 सीन सौद, तीनों को एक ही जगह से अदा करना है, यानी जबान की नोक सना सुफला का किनारा और कुछ सना उलिया से भी मिलाएंगे। तो ये हुआ ज़ा। सीन वहीं से अदा करना है जहां से अभी ज़ा को अदा किया। सीन सीन। शीन, ये है शीन। आपने जहां से जीम को अदा किया है वहीं से शीन को भी अदा करेंगे, यानी जबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु, जबान का बीच और बिल्कुल इसके ऊपर जाकर के हम उस बीच को लगाएंगे और अदा करेंगे। शीन शीन। जीम शीन, दोनों को एक ही जगह से निकालना है। सौद, अभी मैंने बताया जा सीन सौद, तीनों को एक ही जगह से निकालना है। सौद, फर्क यह है कि सौद को पुर पढ़ेंगे, मोटा करके पढ़ेंगे, यानी मुंह भर के पढ़ेंगे। ये जो तख्ती है आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसके अंदर जितने भी ये ग्रीन हरूफ हैं इन सब को हम पुर पढ़ेंगे। इनको हरूफ मुस्तालिया कहते हैं, यानी पुर और मोटे पढ़े जाते हैं। हमने इसी वजह से इनको ग्रीन कर दिया है और नीचे लिखा भी है, देखिए ये सब हरूफ पुर यानी मोटे पड़ जाएंगे, इनको हरूफ मुस्तालिया कहते हैं। इस तख्ती में रा को भी पुर पढ़ेंगे। रा अगरचे हरूफ मुस्तालिया में से नहीं है, लेकिन इस तख्ती में चूंकि रा भी पुर पढ़ा जाएगा तो इसलिए हमने रा को भी ग्रीन कर दिया है। तो सौद को भी अदा कीजिए। सौद सौद। आगे है दौद, इसको अच्छी तरह से समझ ले, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, इसमें बहुत गलती करते हैं। दौद, देखिए जबान की जो करवट है, जबान की करवट को ऊपर की दाढ़ों पर लगाएंगे। तो जबान की करवट को ऊपर की दाढ़ों पर लगाएंगे, ठीक है। लगाइए जबान की करवट जो साइडें होती हैं ऊपर की दाढ़ों पर लगाइए उनको और फिर अदा कीजिए। दौद दौद। जबान की करवट लगानी है, सिर्फ किनारा नहीं लगाना, नोक नहीं लगाना, सिर्फ करवट लगानी है ऊपर की दाढ़ों पर। जब हम वहां करवट को दाढ़ों पर लगा देंगे ऊपर की, तो ये खुद ब खुद अदा हो जाएगा। अदा कीजिए, लगाइए। दौद दौद दौद। इस जगह से जब हम करवटों को दाढ़ों पर लगाएंगे तो ये हर्फ अदा हो जाएगा। अगर थोड़ा भी इधर उधर हो जाएंगे तो फिर या तो दाल हो जाएगा, दुआद हो जाएगा, या जुआद हो जाएगा, और दोनों ही तरीके से गलत हो जाएगा। तो सही है, जबान की करवट को ऊपर की दाढ़ पर लगाएंगे। लगाइए। दौद दौद दौद, ये भी पूरा पढ़ा जाएगा, ग्रीन किया हमने इसको। आगे है तो, जो मखरज दाल का है, जो मखरज ता का है, ता दाल तो,
तीनों का मखरज एक है, तीनों को एक ही जगह से अदा किया जाता है, यानी जबान की नोक और सनाउलिया की जड़ से। फर्क है कि तो को हम पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। अदा कीजिए तो, जबान की नोक सनाउलिया की जड़ पर लगाइए और पुर कीजिए इसको, तो ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे है वा। अभी आपने सा का मखरज पढ़ा है, सा, रल, वा, तीनों का मखरज एक है, बस वा को पुर करके पढ़ेंगे यानी मोटा करके पढ़ेंगे, बाकी मखरज तीनों का एक ही है। अदा कीजिए वा, 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 जोए नहीं पढ़ेंगे, बहुत से इनको तोय जोए पढ़ते हैं, गलत होता है, वा, ठीक है। अब आते हैं आइन, जहां से आपने आइन हा को अदा किया वहीं से आइन को अदा करेंगे, यानी हलक के बीच से आइन, आइन, हा, आइन, दोनों को एक ही जगह से। इसके बाद गैन, जहां से आपने खा को अदा किया है वहीं से आपको गैन को अदा करना है, यानी हलक के मुंह की तरफ वाले हिस्से से। गैन, गैन, खा, गैन, फ, सनाउलिया का किनारा नीचे के होठ के तरी वाले हिस्से पर लगाएंगे। सनाउलिया मैं बार बार बतला रहा हूं, ऊपर वाले सामने के जो दो दांत है चौड़े वो सनाउलिया कहलाते हैं, उनके किनारे को नीचे का जो होठ है उसके तर वाले हिस्से पर लगाएंगे और फिर अदा करेंगे। लगाइए फ, 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 ठीक है। अब आगे आता है कौफ। कौफ जबान की जड़, जबान की जड़ और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु। जबान की जड़, उस जड़ को बिल्कुल उसके ऊपर लगाएंगे और कौफ अदा करेंगे। अदा कीजिए कौफ, कौफ, कौफ। आगे है कैफ, जबान की जड़ से थोड़ा सा आगे को आ जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर को उठेंगे तो काफ अदा हो जाएगा, कैफ, कैफ। पीछे को जाएंगे कौफ, आगे को आएंगे कैफ, पीछे को जाएंगे कौफ, आगे को आएंगे कैफ। देखिए आगे पीछे होने से हर्फ बदलता है और ये ऐसा हर्फ बदलता है कि इस हर्फ के बदलने से फौरन माना के अंदर बहुत बड़ा फसाद पैदा होता है, ठीक है। लैम, लैम जबान का किनारा एक जाहिक से लेकर दूसरे जाहिक तक और ऊपर के दांतों के मसूड़े। जबान के किनारे को जाहिक से, जो जाहिक है ऊपर नीचे दो, ऊपर नीचे एक एक चार दांत हैं, जवाहिक उनको कहते हैं। तो जबान के किनारे को एक जाहिक से लेकर दूसरे जाहिक तक इस तरह से टच करेंगे और लाम को अदा करेंगे, किनारे को लगाएंगे। हम दांतों का नक्शा देंगे, आप दांतों को अच्छी तरह से नाम को याद कर लेना, दांतों के नाम आपको याद होंगे तो और आसानी होगी इन हुरूफ को अदा करने में। अदा कीजिए लैम, 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 मीम, मीम, मीम। मीम को कहां से अदा करना है? दोनों होठों की खुश्की वाला हिस्सा। बा को कहां से अदा किया था? तरी वाले हिस्से से। और मीम को अदा करेंगे खुश्की वाले हिस्से से, यानी बाहर वाले हिस्से से। मा, मीम, मीम, नून। जबान का किनारा एक नाब से लेकर दूसरे नाब तक और ऊपर के दांतों की मसूड़े। जबान के किनारे को जवाहिक से पहले अनियाब दांत हैं, रुबाइयात के बराबर में, और जवाहिक से पहले उनको अनियाब कहते हैं। तो जबान के किनारे को अनियाब के जो मसूड़े हैं उनसे टच करेंगे, एक नाब से लेकर दूसरे नाब तक और ऊपर के दांतों के मसूड़े। तो वहां से अदा करेंगे नून, 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 ठीक है। आगे है वाव। वाव भी होठों से अदा होता है, लेकिन दोनों होठों के ना तमाम मिलने से वाव अदा होता है। होठों से अदा होगा लेकिन होठों को मिलाना नहीं है, अगर मिलाएंगे तो पाव हो जाएगा या माव हो जाएगा। हमें अदा करना है होठों से, लेकिन पूरे नहीं मिलने। वाव, 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 हा, हा, हमजा, हा, हमजा। इन दोनों का मखरज एक ही है, हमजा और हा का। हा और हमजा हलक से अदा होंगे, लेकिन हलक का आखिरी सीने की तरफ वाला हिस्सा,
सीने की तरफ से ये दोनों हरूफ अदा होंगे। ह अ ह अ ह अ ह अ ह जबर ह, हमजा जबर अ ह अ। ठीक है, हलक से लेकिन सीने की तरफ वाले हिस्से से। ये कुल 6 हरूफ है, आइन ह, गैन ख, हमजा हा। ये हलक से अदा होते हैं, इनको हरूफ हल्किया कहते हैं। चूंकि हलक से अदा होते हैं इसलिए इनको हरूफ हल्किया कहते हैं। आइन हा हलक के बीच से अदा होते हैं, गैन खा मुंह की तरफ वाले हिस्से से अदा होते हैं, हमजा हा सीने की तरफ से अदा होते हैं। ये या मुतहर्रिक है, इसका मखरज वही है जो आपने जीम का पढ़ा है और जो आपने शीन का पढ़ा है। जीम, शीन, या तीनों को एक जगह से अदा करना, यानी जबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु बिल्कुल उसके ऊपर से अदा करेंगे। या जीम शीन, या जीम शीन। तो इस तरीके से हमें ये इस तख्ती की हमें मशक करनी है। तो ये स्क्रीन पर आपको जो तख्ती नजर आ रही है, अलिफ ब त थ जीम ह ख दल रल, ये तख्ती मैंने खुद ने तैयार की है। इस तख्ती के मुताबिक आप मशक करेंगे हरूफ की तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप बहुत जल्द कुरान पाक को सही पढ़ने लगेंगे। और इस तख्ती के अंदर जितने हरूफ हैं जो पूरे यानी मोटे पढ़े जाते हैं उनको हमने ग्रीन किया है और नीचे ये लिख भी दिया है। इस तख्ती आपकी स्क्रीन पर है और हम पूरी तख्ती एक साथ स्क्रीन पर आप हजरात की खिदमत में पेश कर देंगे। बस आप इसके मुताबिक कुरान पाक पढ़ने की कोशिश कीजिए।